So where we were in a last lab में ये प्रैक्टिकल्स लिख लिए थे तुम लोगों ने, अनुजा, अरुणामा, नील, ठीक है। एंड प्री लैब शायद 2 हो गई थी अपनी, यस यस मैम, 2 प्री लैब हुई थी। ठीक है। तो now this is the first one, study and implementation of voltage series and current series negative feedback amplifier. Then study and implementation of voltage shunt and current shunt negative feedback amplifier. ठीक है। अब इसके बाद जो आता है तुम्हारा, like this one is there, that third one is a plot frequency. ये इसके क्वेश्चंस लिखे करे क्या तुमने सॉल्व, ट्राई किए? चलो अब कर लेना, अभी टाइम है। अब जैसे ये वैसे तुम्हारी टाइम टेबल में शेड्यूल सैटरडे ले पे, बट सैटरडे वेन एवर आई विल गेट टाइम आई विल टेक। सो इस वीक की अपनी आज लैब हो रही है। सो बट धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करना। आई डू एग्री अभी तुम्हारा थ्योरी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इट विल हेल्प यू आउट इन अ प्रैक्टिकल। वी कैन नॉट रेजिस्ट अवर प्रैक्टिकल्स ड्यू टू थ्योरी में नहीं हुआ है ना, ठीक है। सो फर्स्ट मैं एक बार वापस से, इट इज इन माई हैबिट, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक अपन ने सिर्फ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल डिस्कस करी एंड व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक दैट वी हैव बीन डिस्कस, ठीक है। एंड डोंट वरी हाउ टू राइट फाइल एंड एवरीथिंग, आई विल लेट यू नो. I scanned previous your seniors files also, and I may prepare my presentation for each practical also. I do agree now the college is closed till 3, so वो video online वो भी upload नहीं हो सकता है, how to perform practical. So don't worry, but we'll grab everything. Even the lockdown will continue, then also I prepared your lab 2 months before when it was allotted. So relaxed. You need to complete your paperwork and the understanding for the subject. Okay? Is it clear, beta? So यस मैम। relax and अगर पूरे सेमेस्टर भी अगर तुम लैब में नहीं आ पाए तो भी my data is many more sufficient for all for understanding this lab. ठीक है? Only you need to attend regularly this lab. Fine. Now where were we? First practical हमारा जो है negative feedback amplifier 4 type से होते हैं. So first practical is for the voltage series and current series analysis. ठीक है। एंड सेकेंड प्रैक्टिकल इज फॉर द वोल्टेज शंट एंड करंट शंट फील्ड। इसके क्वेश्चंस तुमने लिख लिए थे। नाउ थर्ड प्रैक्टिकल इज अ प्लॉट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ 2 स्टेज आरसी कपल्ड बीजेटी एम्पलीफायर विथ एंड विदाउट फीडबैक इन, ठीक है। एंड कैलकुलेट बैंडविड्थ गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, कैलकुलेट बैंडविड्थ, रुको ये गलत है, calculate with and without feedback and calculate gain bandwidth product with and without negative feedback. इसके ये 5 क्वेश्चंस है, ये लिख लो फिर मैं आगे को बताती हूँ. When you complete please let me know. Mask on. Sanitizer. आज सारी प्री लैब्स तुम लोग लिख लो एंड नेक्स्ट लैब से अपन लोग लाइक विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रैक्टिकल, ठीक है। And one more thing which you need to keep to understand, you need to give very brief answer. Just define 2 stage RC coupled amplifier with and without feedback. So only what you need to do,
just give definition in one line. Two stage RC couple amplifier is this, or फिर with and without. Why negative feedback used in RC couple? Only one line answer. I just want you to be smart, not the theoretical कि एक एक पेज का लिखो, दो दो लाइन के आंसर लिखने हैं तुम्हें. मतलब ये स्ट्रेंथ मानो इस प्री लैब को करने के लिए प्रैक्टिकल फाइल के तुम्हारा 1.5 पेज सफिशिएंट है. ठीक है. लिख लिया बेटा? Please let me know so that I can scroll now. मैम लिख लिया. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने एनएफए के बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं, सेकेंड में भी विद रेफरेंस टू नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स के दिए हैं. थर्ड प्रैक्टिकल तुम्हारा ये तुम ऑलरेडी ये वाला के तो क्वेश्चंस तुम कर सकते हो क्योंकि दिस यू ऑलरेडी बीन स्टडी in your third semester. So basic answers देने हैं कि why RC coupled amplifier, why it is called RC coupled amplifier. So very easy answer is there that two amplifiers connected through a resistor and capacitor. That is why it is called RC coupled amplifier. Coupling means what? Coupling is a way. Means which coupling is best and why? जैसे ट्रांसफार्मर कपल, RC कपल, डायरेक्ट कपल, ये तीनों पढ़े थे तुमने क्लास सेम में? यस एंड नो? सी बी ना. एक सबसे पहले पढ़ा होगा डायरेक्ट कपल जिसमें हम कुछ भी नहीं लगाते हैं. सेकंड वन इज आरसी कपल in which you have one resistor and capacitor. Third one is a transformer couple in which in between two stages a transformer is going to be there. है ना? So particularly कौन सा बेस्ट होता है? दैट इज आरसी कपल्ड. व्हाई? तो वो रीजन तुम्हें सिर्फ एक लाइन में लिखना है. फाइन. इजी है क्वेश्चंस. ये एक तरह से तुम्हें वाइवा वॉइस तैयार करना मेरा पर्पस है. Now, the fourth one is a plot and study the characteristic of a small signal amplifier using FET. Okay. इसमें जैसे what do you understand by small signal amplifier FET? Differentiate between BJT and FET. Output and transfer characteristic of FET. What does it mean the channel is pinch off? Constructional feature of MOSFET. Okay. When you complete, inform me.
लिख लिया बेटा? नील, रजनीश, संतोष, अरुणाभ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay? एक बार एक्नॉलेज कर दिया करो कि दैट वी हैव डन। ठीक है, फिर फिफ्थ प्रैक्टिकल जो तुम्हारा है, that is a study and implementation of series voltage regulator and calculate line regulation and ripple. This is also we have you study in your थर्ड सेमेस्टर। इसमें तुम लोग वो जो ट्रांजिस्टराइज या डायोड दोनों टाइप के रहते हैं, इसमें अपन डायोड वाला और ट्रांजिस्टर वाला लेट्स वो स्टडी करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, व्हाट वी मीन, व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग यू कैन नोट इट डाउन द क्वेश्चन। Voltage regulation is whatever variation is coming on the input side, then also my output should be regularized or constrained. That is a voltage regulation. Series voltage regulation और shunt में क्या difference रहता है? जो तुम्हारी regulating device है, that is a diode or a transistor. When it is connected in a series, it is a series regulator. When it is connected in a shunt, that is called shunt. ठीक है, तो series regulator के केस में क्या होगा? The question is, what do you understand by regulation? Explain and classify. Then differentiate between series and shunt regulators. Voltage regulation कौन सा अच्छा रहता है? Formula for load and line regulation, that is very simple. What we understand by ripple factor, write down formula. Secondly, नीचे जो shunt regulation है तुम्हारा, अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट प्रैक्टिकल में सीरीज है, फिर शंट है। एंड बिफोर इन अ नेक्स्ट लैब नेक्स्ट वीक, just but you inform me today, like should we do first those practical whose theory you have been learned, like we can do like FET, RC coupled, series and voltage regulators, ये अपन 4 प्रैक्टिकल पहले कर देते हैं ताकि तब तक शायद तुम्हारा NFA वगैरह स्टार्ट हो, और then we'll do NFA, oscillator and further। बोलो बच्चों, it's your wish। मेरे को तो सारे प्रैक्टिकल्स कराने हैं and everything is prepared, so ऐसा करें। फिर तुम्हारी लिस्टिंग में तुम फर्स्ट वही लिखना जो तुम कर रहे हो, ठीक है? शुड वी डू दिस? डोंट हेजिटेट, फील फ्री टू टॉक। गौरव, कार्नेल, मुस्कान, यस। नो रिप्लाई? आई नेवर अंडरस्टैंड साइलेंस। मैं अभी फाइनल ईयर की क्लास भी ली है, उसमें भी मुझे रहता है कि टू वे कम्युनिकेशन शुड बी देयर, ओके? इन बिटवीन यू डोंट इंटरप्ट मी, but when I am asking something to you, you need to reply। और फटाफट लिखो थोड़ा, एक्चुअली ये क्या 40 मिनट्स बाद सिस्को में मीटिंग अपने आप एंड हो जाती। चलो ये 5 और 6 प्रैक्टिकल लिख लो। एंड ऑफ द लैब में मेरे को ये आई जस्ट वांट यू कि एनएफए और ऑक्सीलेटर्स से पहले अपन जो तुम ये थ्योरी पढ़ चुके हो ये प्रैक्टिकल करें। अब जैसे शंट में क्या क्वेश्चन है, why we need regulation, 4 main parts of voltage regulations क्या है, और how many types of regulators are there, and why we calculate regularizations, where it is used, and what is AVR, that is automatic voltage regulator. Is AVR really needed? That is going to be easy questions sir। लिख लो तो मुझे इन्फॉर्म करना। मैम लिख लिया है। Yes, ma'am. Completed.
ओके बेटा? Yes, ma'am. Now the seventh practical is study and implementation of Venn bridge oscillator. Observe the effect of variation in oscillator frequency. ये जो practical है तुम्हारा, that is RC type. RC मतलब resistance capacitor type. ठीक है? So इसमें जो questions है, what do you mean by feedback amplifier classified? Which type of feedback is there in oscillator and why? So in oscillator, positive feedback is there. Why? Because the feedback which we give in an oscillator, it used to enhance the gain. That is why it is called positive feedback. And why do we use Venn bridge oscillator? So RC coupled में complexity रहती है, उसको overcome करने के लिए हम Venn bridge use करते हैं. और नहीं, लाइक इसमें ये है कि पहले एलसी तुम्हारी थ्योरी में भी पहले इंडक्टर कैपेसिटर ऑक्सीलेटर्स आएंगे. सो एलसी ऑक्सीलेटर्स जो रहते हैं हार्टले कॉल्पिट, उसमें क्या फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एंड डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी प्रेफर आरसी. आरसी मीन्स रजिस्टर कैपेसिटर ऑक्सीलेटर. आरसी में भी हम फर्स्ट जाते हैं तो वैन ब्रिज. वैन ब्रिज की डिजाइनिंग क्यों प्रेफर करते हैं, वाई वी यूज वैन ब्रिज? So due to the distortion and like losses occur in a LC oscillator, we prefer Venn bridge oscillator. ठीक है? Difference between Venn bridge and RC, it is a most common question in RTU. Your theory exams also it could come. ठीक है? चलो ये लिखो. फिर नेक्स्ट ये Venn bridge वाला होगा तुम्हारा. फिर नीचे RC फैशन. Yes, ma'am. हो गया. Now next is a RC phase shift. इसमें जो है फर्स्ट वही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसी एंड आरसी ऑक्सीलेटर? मतलब इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर कैपेसिटर ऑक्सीलेटर्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द यूज ऑफ आरसी फेज शिफ्ट? हाउ डू यू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आरसी फेज शिफ्ट? हाउ द बार्कहाउसन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड इन आरसी फेज शिफ्ट? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर? ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हार्टले कॉल्पिट वाला है तुम्हारा प्रैक्टिकल. दैट इज अनदर काइंड ऑफ ऑक्सीलेटर. ये दो टाइप के हैं, दोनों को अपन को सेम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना है. हार्टले में जो कॉम्बिनेशन रहता है वो क्या होता है? दो इंडक्टर होते हैं और वन कैपेसिटर होता है. whereas in a colpit you have a two capacitor and one inductor. ठीक है? सो इसमें वो ये विच इज बेटर, हार्टले कॉल्पिट में भी ये रहता है कौन सा बेटर है. तो जनरली ये होता है कैपेसिटिव लॉस की बजाय इंडक्टिव लॉसेस जो रहते हैं वो ज्यादा हार्मफुल रहते हैं, तो हार्टले से ज्यादा बेटर कॉल्पिट हो. तो वो बताना रहेगा विच व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉल्पिट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला फॉर हार्टले, हाउ डज एन ऑक्सीलेटर वर्क विदाउट इनपुट. ऑक्सीलेटर में तुम देखोगे हम इनपुट नहीं देते हैं, ओनली क्लॉक पल्स के थ्रू इट इज गोइंग टू बी मूव ऑन.
ठीक है. And what are the basic requirement of oscillator? That is also again very simple questions. Right. See, I put a lot of effort for making this small question for you all, because I know when the theory is in another hand and lab is taken by another faculty, students are bit unable to understand the concept. So this question is only for just to bridging that gap. Okay. So I will not concern what is going on your theory. We will move ahead with this. But yes, of course, in a next lab, first of all, हम RC कपल्ड FET और रेगुलेशन वाला करेंगे. ये चारों टॉपिक तुम पढ़ तो चुके हो ना लास्ट सेम में? नील बेटा, अरुणामा, पढ़ चुके हो? यस. अनुजा, कर्नेल, मुस्कान, ये तुम पढ़ चुके हो? यस मैम. है ना. तो पहले हम वो 4 प्रैक्टिकल करेंगे, फिर NFA, फिर ऑक्सीलेटर और फिर ओपैम करेंगे. ठीक है, चलो फटाफट कर लो. लोग की जब तक ये लिख रहे हो अटेंडेंस दे दो. संतोष, आर यू देयर? संतोष, रजनीश, नील, Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी, मुस्कान, मुस्कान, आर यू देयर? यस मैम. अनिल, Present, ma'am. परव, Yes, ma'am. अनुजा, नामा, अनुजा, आर यू देयर? अरुणामा, जल्दी करो बेटा. Yes, ma'am. हो गया. Now the 10th practical, यहाँ से तुम्हारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज IC 741. इस IC का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसके बारे में तुम्हारे इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे. इट इज 8 पिन IC. सो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की स्टडी रहेगी इसमें. इन्वर्टिंग यानी होता है माइनस वाला, नॉन सॉरी इन्वर्टिंग इज अ प्लस, नॉन इन्वर्टिंग दोनों को अपन स्टडी करेंगे. सो बेसिक थिंग है इसमें, व्हाट आर द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कंडीशंस, व्हाई आउटपुट वोल्टेज डिफरेंट बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग, at what condition does an inverting amplifier work as an inverter, which is better, inverting or non-inverting, what is op-amp and its application. ठीक है, 2 या 3 लाइंस में तुम्हें इसके आंसर्स देने हैं. और तुम लोग प्रीलैब्स ऐसा भी कर सकते हो कि इंडिविजुअल पेजेस पे लिख के भी रख सकते हो, क्योंकि इसके छोटे छोटे आंसर तुम्हें गूगल पे या इस पे मिल जाएंगे इजीली. इवन अगर तुम्हारे पास बुक है, 4th सेम की कोई स्टैंडर्ड बुक है एनालॉग सर्किट्स की, यू विल गेट ऑल आंसर इन दैट. ठीक है. स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन फिर इसके बाद पहले ये लिख लो. फिर नेक्स्ट जो है समिंग, स्केलिंग एंड एवरेजिंग. फर्स्ट प्रैक्टिकल में तो हम सिंपल इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का जो सर्किट रहेगा, इन दैट प्रैक्टिकली हम यही करते हैं, उस किट पे इनपुट देते हैं और आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं और वो वेव अपन बनाते हैं. वही चीज अपन यहाँ करेंगे. 11th प्रैक्टिकल जो है उसमें समिंग, स्केलिंग एंड एवरेजिंग. उसमें सर्किट जो रहेगा इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेके वी विल अप्लाई दिस 3 ऑपरेशन इन. समिंग यानी एडिशन, स्केलिंग यानी ऑप्टिमाइजेशन एंड एवरेजिंग मींस A1 plus A2 by 2. दैट इज गोइंग टू बी द. इसके 2 क्वेश्चन और नीचे हैं, पहले तुम ये लिख लो, है ना.
यस मैम हो गया. रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ 11th और फिर 12th प्रैक्टिकल जो लास्ट है उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिव फिल्टर करेंगे यूजिंग ऑप एम्प. Like function of op amp for active filters, most commonly used active filters, the difference between active filter and passive filter, and what is 3 dB frequency, why do we use filters, which filter performs exactly. This question is going to be. और ऑपरेशनल के लिए हम 741 IC यूज करते हैं. In which type of amplifier the input voltage is amplified by a scaling factor. स्केलिंग फैक्टर यानी होता है ऑप्टिमाइज करने वाला फैक्टर. ठीक है. कंप्लीटेड बेटा. बस लास्ट वन. तुम्हारा पैटर्न क्या रहेगा प्रैक्टिकल लिखने का भी. एक तो इंडेक्स रहना चाहिए फाइल में और नोटबुक या रजिस्टर में प्लीज लैब का काम मत करना. अगर तुम्हें कॉलेज के प्रिंटेड पेज नहीं मिल रहे हैं तो वट एवर प्रैक्टिकल पेजेस यूज टू बी अवेलेबल ऑन योर प्लेस और सिटी यूज दैट. ठीक है. और उसमें यही है, पहले इंडेक्सिंग का पेज अलग रहेगा, उसमें तुम इंडेक्सिंग करते जाओगे जैसे जैसे अपने प्रैक्टिकल्स होंगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वट एवर इज अ प्रैक्टिकल नंबर 1 उसकी प्री लैब लिखोगे. जो भी अपन फर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं दैट विल बी योर प्रैक्टिकल 1. Doesn't matter our list of practical sequence. Like first of all, we'll do RC coupled two-stage amplifier in the next lab. So you need to write down the pre-lab of that. और pre-lab के beside ही हम practical start नहीं करते हैं. Means pre-lab अगर suppose 1.5 पेज में आई है तो 3rd पेज से भी start with the practical. ठीक है. तो तुम लोग pre-lab सारी लिख के भी अभी तुम्हारे पास जैसे टाइम है तो तुम लिख सकते हो. But yes, of course, the pattern will be pre-lab 1, फिर उसका practical, pre-lab 2, फिर practical. Pre-lab is a kind of pre-preparation for that particular practical, and it is a certain kind of MCQ or objective questions, like that I gave you, just to explore your knowledge regarding that particular practice. I suppose you completed, beta? यस मैम. Okay. तो अभी अपने पास ना किट है ना कुछ है, लेकिन यस यू फील योर सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट बाय माई प्रोएक्टिवनेस दैट आई हैव प्रिपेयर्ड योर सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल प्रैक्टिकल डेटा प्रीवियसली. वीडियो आई थॉट आई विल शेयर लाइव वीडियो while performing. I will share with you, so I will see later. But now in the next lab I will take the next lab in next week. Day I will decide still. It is not certain like Tuesday ही हम लेंगे या Saturday, जैसे भी टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे अभी लग नहीं रहा तुम्हारी कोई अभी तक कोई थ्योरी क्लास हुई है कि 2-4 दिन में. Anybody took your classes?
नो मैम, नहीं, अभी वहाँ कोई पे क्लास नहीं होती। मैम आज 3 बजे है बट किसकी है? एडीसी। एचओडी सर की। ठीक है, तो जैसे भी टाइम मिलेगा तो मैं एक बार पहले पूछ लूंगी, बता टाइम अलॉट कर दूंगी, अगर क्लैश हुआ तो देख लेंगे। बाकी हाँ, ट्यूसडे भी रख सकते हैं। ट्यूसडे पहले मेरा फाइनल ईयर का तुम्हारा लेक्चर रहता है 10:15 से, विल सी। ठीक है, तो मीनवाइल तुम एक वीक क्या करो, ये अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो इसको लिख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इन द नेक्स्ट लैब विल स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिकल। कौन सा? प्लॉट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर विद एंड विदाउट फीडबैक। और अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट भी कर लेंगे। इसमें तुम लोगों को थोड़ा एक्टिव रह के, एक तो नोटबुक कॉपी भी रखना है, लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी कर रहे हो तो तुम्हारा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना रहेगा, क्योंकि जैसे ग्राफ वगैरह भी है जो ओरिजिनल वगैरह है वो भी मैं शेयर करूंगी कि रीडिंग से कैसे आए हैं। तो अभी अगर कुछ नहीं मिल पाया तो तुम्हें उसकी स्क्रीनशॉट लेके सेव ऐसे करने हैं। जो थ्योरी पार्ट है वो तो तुम्हें अपने हैंड रिटन लिखना है। वेवफॉर्म वगैरह की जो है रीडिंग्स वगैरह ऑल्सो यू नीड टू राइट डाउन बाय योर हैंड, बट द ग्राफ विच आई विल शेयर यू नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड गेट द प्रिंट आउट एंड गेट फिक्स. Finally, what I want, whatever is the situation, at the end your file should be perfect. Like in a last semester also we have a perpetual software for VLSI design which a student cannot access on their laptop or a PC. So I perform those practical, I share the result and I told to take the screenshot and get the printout. So by the end of their session, the file of 120 pages was very beautiful and perfect in all sense to get the knowledge. I suppose you, the idea is clear. So I put a lot of effort. Only you need to be presence of your mind and ask doubt if you have. ठीक है? So see you. Take care. ठीक है? Next week मिलते हैं अपन. ओके मैम। मीटिंग कोई था क्या इसमें? ठीक है? So I will inform you. मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे ही मैं लूंगी, लेकिन फिर भी आई विल इन्फॉर्म।